ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ପରେ ମୋତେ ପାଦିକା ପରି ଗୋଟିଏ ନଳ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଉଠ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବେଦୀ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାପ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାହା ମାପ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବେଜାତିମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ୍ୟ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ହତ ହେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପୁଣି ଯେତେଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବଦ୍ଧ କରିବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୋଦମ ଓ ମିଶ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ମହାନଗରୀର ରାଜପଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆଉ ନାନା ବଂଶ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତିର ଲୋକେ 3.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶବକୁ ଦେଖିବେ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମୋଦ ଓ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେବେ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଭାବବାଦୀ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। 3.5 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ବାୟୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଦରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ମହାଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମେଘାରୂଢ଼ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ନଗରୀର 10 ଭୂମିସାତ ହେଲା। ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ 700 ଲୋକ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଭୀତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାପ ଗତ ହେଲା, ଦେଖ, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାପ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ 15 ପଦ ଠାରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସପ୍ତମ ତୁରୀ ବାଦନ। ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ 24 ପ୍ରାଚୀନ ହାବୁଡ଼ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭୂତ ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ଆମେମାନେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମହାଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ବେଜାତିମାନେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିଲେ,
किंतु तुम्भर क्रोध उपस्थित है। पुणी मृतमानंक विचार करने समय और तुम्भर दास भाववादी मानंकु साधु मानंक और तुम्भ नामर भयकारी सान और बड़ समस्त लोकंकु पुरस्कार देवार आ पृथ्वी विनाशकारी मानंकु विनाश करिवार समय उपस्थित है। सेतेबेले स्वर्गरे थिबा ईश्वरंक मंदिर उन्नक्त है और तांक मंदिर मध्यरे तांक नियम सिंधुक दृष्ट है। पुणी विद्युत विभिन्न स्वर मेघगर्जन भूमिकंप और महाशिलावृष्टि है। जहनंक प्रति प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 1 पद ठारू 18 पद पर्यंत। एक नारी एवं प्रकांड सर्प, एक नारी एवं प्रकांड सर्प। परे आकाश रे गोटे महालक्षण देखागला। सूर्य परिहिता जड़े स्त्री लोक, ताहांक पाद तले चंद्र और मस्तक रे 12 नक्षत्र खचित गोटे मुकुट। से गर्भवती होई प्रसव वेदना रे अर्थस्वर करी प्रसव करने निमंते कष्ट पाउथिले। आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखागला। देख गोटे लोहित वर्ण प्रकांड सर्प, ताहार 7 मस्तक और 10 श्रृंग, पुणी मस्तक गुड़िक उपरे 7 मुकुट। ताहार लांगुल आकाशर तृतीयांश नक्षत्र को आकर्षण करी पृथ्वी रे निक्षेप कला। आउ सेई सर्प प्रसव करने को उद्यत स्त्री लोक प्रसव करने मात्र ताहार संतान मानंकु ग्रास करने निमंते ताहांक सम्मुख रे ठिया हला। से समस्त जाति को लहदंड रे शासन करिवे। एपरि एक पुत्र संतान मानंकु सेही स्त्री लोक प्रसव कले। आ ताहांक संतान ईश्वर और ताहांक सिंहासन निकट को उठाई नियागले। पुणी सेही स्त्री लोक प्रांतर को पलायन कले। सेठारे 1260 दिन पर्यंत प्रतिपालित हेबा पाई ताहांक निमंते ईश्वरंकर कर्तुक प्रस्तुत गोटे स्थान थिला। प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 7 पद ठारू 18 पद पर्यंत। शैतान को पृथ्वी रे निक्षेप, शैतान को पृथ्वी रे निक्षेप। तप्तरे स्वर्गरे युद्ध है। मिखाएल और तांकर दूत माने से सर्प सहित युद्ध कले। सेथिरे से सर्प और ताहार दूत माने मध्य युद्ध कले, किंतु से माने जय करि पारले नहीं। पुणी स्वर्गरे से माने आउ स्थान पाइले नहीं। सेथिरे सर्व जगतर प्रबंचक दियाबल और शैतान नाम रे ख्यात जे प्रकांड सर्प, से पुरातन नाग, से अपना दूत मानक सहित पृथ्वी रे निक्षिप्त हैला। सेतेबेले मु स्वर्गरे एही उच्च स्वर शुणिली, वर्तमान आम मानकर ईश्वरंक परित्राण पराक्रम और राज्य पुणी ताहांकर ख्रीष्टंकर कर्तापण उपविष्ट होइअछि। कारण आम मानकर भातृगणक अपवादक जे दिवारात्र सेमानंक विरुद्ध रे आम मानकर ईश्वरंक छामुरे अभियोग करुथला, से तले निक्षिप्त होइअछि। आउ सेमाने मेष शावकंक रक्त और आपणा आपणा साक्षर वाक्य द्वारा ताहाकु जय करिअछन्ति। पुणी सेमाने मृत्यु पर्यंत आपणा आपणा प्राण को प्रिय ज्ञान करि नथिले। अतएव हे स्वर्ग ओ तन्निवासी माने आनंद कर। मात्र हाय पृथ्वी और समुद्र, तुमे माने शांतापर पात्र, कारण समय अति अल्प बोली जानी दियाबल आपणा महाक्रोधरे तुम मानक मध्य को ओह्लाई जाइअछि। सर्प आपणा को पृथ्वी रे निक्षिप्त हेबार देखि सेही पुत्र संतान प्रसवकारिणी स्त्री लोक मानकु ताड़ना कला।
ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଉତ୍କୃଷ ପକ୍ଷୀର 2ଟି ପକ୍ଷ ଦତ୍ତ ହେଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ପ ଆପଣା ପଛରେ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପଶୁ। ତପ୍ତରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଓ 7 ମସ୍ତକ। ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକରେ 10ଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ସେହି ସର୍ପ ତାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। ତାହାର ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସଂଘାତିକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାର ସେହି ମୃତ୍ୟୁଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେହି ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ପ ସେହି ପଶୁକୁ ଆପଣା କ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନେ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଏହି ପଶୁ ପରି କିଏ? ଆଉ କିଏ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ? ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦକ କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଆଉ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦତ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତି ଉପରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜଗତର ପତନାବିଧି ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। କେହି ଯଦି ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବ। କେହି ଯଦି ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ 11 ପଦ ଠାରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ। ତପ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପରି ତାହାର 2ଟା ଶୃଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାହା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରାଏ।
आउ से पशुर साक्षात जो आश्चर्य कर्म करने को से क्षमता प्राप्त होइथिला तद्वारा से पृथ्वी निवासी मानक भ्रांत करी जो पशु खड़ग द्वारा आघात हेले हैं बंची थिला ताहार एक प्रतिमा निर्माण करने को से मानकु कहे। पशुर प्रतिमा जेपरी कथा कही पारे ओ जेते लोक पशुर से ही प्रतिमा को प्रणाम न करती से माने जेपरी बद्ध करा जिवे एथिपाई ताहाकु सेही पशुर प्रतिमा को जीवन दान करने को क्षमता दिगला। आउ से सान ओ बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्त को सेमानक दक्षिण हस्तरे किए बा कपाଳରେ गोटे चिन्ह धारण करने को बाध्य कराए। पुणी से ही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ता नामर संख्या धारण करिनथिबा लोकंकु क्रय विक्रय करने को निषेध करे। एठारे ज्ञान आवश्यक जार बुद्धि अच्छी से पशुर संख्या गणना करू कारण ताहा जणे मनुष्यर संख्या आ ताहार संख्या होची 666। जहनक प्रति प्रकाशित वाक्य 14 पर्व 1 पद ठारू 5 पद पर्यंत मेष शावक एवं 1,44,000 भक्त। मेष शावक एवं 1,44,000 भक्त। तप्तरे मु दृष्टिपात कली आउ देख सियोन पर्वत उपरे मेष शावक आउ जो मानकर कपाଳରେ ताहांकर नाम ओ ताहांकर पितांकर नाम लिखित थिला एपरि 1,44,000 लोकंकु ताहांक सहित दंडायमान थिबार देखिली। पुणी मु स्वर्गरु बहुजल कोल्लल ओ महाब्रजनाद तुल्य गोटे स्वर शुणिली। जो स्वर मु शुणिली ताहा बीणा वाद्यकारी मानकर बीणार शब्द परी से माने सिंहासन चारि प्राणी और प्राचीन मानक सम्मुखरे गोटे नूतन गीत गान कले। पुणी पृथ्वी कृत से ही 1,44,000 लोकंक बिना आउ केही से गीत शिखि पारिले नहीं। सेमाने स्त्री संसर्गरे स्त्री संसर्गरे आपणा आपणा को कलुषित करि नथिले कारण सेमाने सूची। मेष शावक जेकोसी स्थान को गमन करती से स्थान को सेमाने ताहांकर अनुगामी होती। सेमाने ईश्वर और मेष शावकଙ୍କ उद्देश्य प्रथम जात फल स्वरूपे मनुष्य मानक मध्यरु कृत होई अछंती। सेमानଙ୍କ मुखरे कौनसी मिथ्या कथा नहीं सेमाने निर्दोष। प्रकाशित वाक्य 14 पर्व 6 पद ठारू 13 पद पर्यंत तीनी दूतंकर संवाद परे मु आउ जणे दूतंक आकाशर मध्य भागरे उड़ीबार देखिली। से पृथ्वी निवासी समस्त जाति गोष्ठी भाषावादी ओ वंशीय लोकंक निकटरे प्रचार करने निमंते एक अनंत काल स्थायी सुसमाचार प्राप्त होई उच्च स्वर रे कहले ईश्वरंकु भय कर ओ ताहांकु गौरव प्रदान कर कारण ताहांकर विचार समय उपस्थित। पुणी जे आकाश पृथ्वी समुद्र ओ निर्झरणीय समूह सृष्टि करि अछंती ताहांकु प्रणाम कर। ताहांक प्राश्चातरे आउ जणे अर्थात द्वितीय दूत आसी कहले जो महानगरी बाबिल समस्त जाति को आपणा बेविचार काम रूप मदिरा पान कराई अछि से पतित अधपतित होई अछि। सेमानकर पाश्चातरे आउ जणे अर्थात तृतीय दूत आसी उच्च स्वर रे कहले जदि केही सेही पशु ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करे पुणी आपणा कपाଳରେ कि हाथ रे ताहार चिन्ह ग्रहण करे तेबे से मध्य ईश्वरंक कोप रूप जो मदिरा अमृषित भावे ताहांक क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत करा जाई अछि ताहा पान करिवो। पुणी पवित्र दूतंकर ओ मेष शावकଙ୍କ साक्षात रे अग्नि ओ गंधक द्वारा जंत्रणा प्राप्त हेबो। एपरि लोक मानकर जंत्रणार
धूम जुगे जुगे उठुथिब। जो माने पशु और ताहार प्रतिमा को प्रणाम करती पुणी ताहार नाम चिन्ह ग्रहण करती सेमानंकर दिवारात्र विश्राम नाई। एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वरंकर आज्ञा पालन करती और जीशुंक प्रति विश्वास रखती सेमानंकर धैर्य आवश्यक। पुणी मु स्वर्गरू यही बाणी शुणिली लेख जो माने एणिकी प्रभुंक ठारे थाई मरती सेमाने धन्य। हाँ आत्मा कहूअछंती सेमाने आपणा आपणा परिश्रमरू विश्राम प्राप्त हेबे कारण सेमानंकर कर्म सेमानंकर अनुवृत्ति हब। प्रकाशित वाक्य 14 पर्व 14 पद ठारू 20 पद पर्यंत। पृथ्वीर शस्य अमल पृथ्वीर शस्य अमल तप्तरे मु दृष्टिपात कली आ देख शुभ्रवर्ण खंडे मेघ तही उपरे मनुष्य पुत्रंकर सदृश्य जने उपविष्ट तांक मस्तकरे सुवर्ण मुकुट ओ हस्तरे सुतिक्मा दाता तांक मस्तकरे सुवर्ण मुकुट ओ हस्तरे सुतिक्ष्म दा से मंदिर आउ जने दूत बाहरी से मेघारूढ़ व्यक्ति को उच्च स्वर रे कहले आपणकर दा लगाई शस्य काटंतु कारण काटिबार समय उपस्थित आ पृथ्वीर शस्य अतिरिक्त परिपक्व होई अछि तो से मेघाडूर व्यक्ति पृथ्वी रे आपणा दा लगाते से शस्य कटागला। तप्तरे स्वर्गस्थ मंदिर आउ जने दूत बाहर हेले ताहांक हस्तरे मध्य गोटे सुतीक्ष्म दा थिला। पुणी बेदी निकटरू आउ जने दूत बाहर हेले से अग्नि उपरे क्षमता प्राप्त जांक हस्तरे सुतीक्ष्म दा थिला। तांको से उच्च स्वर डाकी कहले तुम्भर सुतीक्ष्म दा लगाओ और पृथ्वीर द्राक्षा पेंडा सबू संग्रह कर कारण से द्राक्षा फल सबू परिपक्व होई अछि। तहिरे से दूत पृथ्वी आपणा दा लगाई से द्राक्षा फल सबू संग्रह कले और ईश्वरंकर क्रोध रूप महा द्राक्षा कुंडरे से सबू निक्षेप कले। नगरर बाहरे से द्राक्षा कुंड दलित हला आ सेथिरु रक्त बाहर होई अश्वमानंकर लगाम पर्यंत उठी 100 कोश पर्यंत व्यापीगल 100 कोश पर्यंत व्याप्त हला। जहनंक प्रति प्रकाशित वाक्य 15 पर्व 1 पद ठारू 8 पद पर्यंत। सप्त क्लेशधारी सप्तदूत सप्त क्लेशधारी सप्तदूत तप्तरे मु स्वर्गरे आउ एक महा अद्भुत लक्षण देखिली। सप्तदूत सेमानंकर हस्तरे सप्त क्लेश यह ही शेष कारण यही क्लेश मानकरे ईश्वरंकर क्रोध समाप्त। आउ मु देखिली जेपरी अग्नि मिश्रित गोटे काचमय समुद्र पुणी जो माने पशु और ताहार प्रतिमा और ताहार नामर संख्या उपरे विजयी होई अछंती से माने ईश्वरंकर बीणा धारण करी सेई काचमय समुद्र तीर रे दंडायमान होई अछंती। से माने ईश्वरंकर दास मोसा ओ मेष शावकंक गीत गान करी कहू अछंती हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्भर कर्म समूह महत् ओ आश्चर्य। हे जाति समूहर राजा तुम्भर पथ समस्त न्याज्या ओ सत्य। हे प्रभु किए तुम्भको भय न करिब किए तुम्भ नामर गौरव कीर्तन न करिब कारण केवल तुमे ही पवित्र। जाति समूह आसी तुम्भ छामुरे प्रणाम करिवे तेणु तुम्भर न्याज्या कर्म समूह प्रकाशित होई अछि। एथि उतारे मु देखिली स्वर्गस्थ साक्ष्य तंबुर मंदिर द्वार उन्नक्त हैला आ मंदिररू से सप्त क्लेशधारी
सप्तदूत बाहरी आसिले सेमाने मणि खचित निर्मल और उज्जवल मसिना वस्त्र परिहित पुणी सेमानंकर वक्षस्थल सुवर्ण पटुकारु बुद्ध से चारि प्राणी मध्यरु गोटे प्राणी अनंत जीवी ईश्वरंक क्रोधरे परिपूर्ण सप्त सुवर्ण पात्र से सप्तदूत को देले आउ ईश्वरंकर गौरव और शक्तिर धूमरे मंदिर परिपूर्ण है सप्तदूतंक सप्त क्लेश समाप्त न हेबा पर्यंत केही मंदिर रे प्रवेश करि पारिले नाही। जहनंक प्रति प्रकाशित वाक्य शेउल पर्व 1 पद ठारू शेउल पद पर्यंत ईश्वरंकर क्रोधर सप्तपात्र ईश्वरंकर क्रोधर सप्तपात्र तप्तरे मु मंदिर मध्य गोटे उच्च शब्द शुणिली ता सप्तदूत को कहला जाओ ईश्वरंकर क्रोधर सप्तपात्र पृथ्वी उपरे ढाल सेतिरे प्रथम दूत जाई पृथ्वी उपरे आपना पात्र ढालिले तहु जो माने पशुर चिन्ह ग्रहण करथिले ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करथिले सेमानंक शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हला। द्वितीय दूत आपना पात्र समुद्र उपरे ढालिले तहु ताहा मृत लोकंकर रक्त परि हला आ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मले। तृतीय दूत आपना पात्र नदी और निर्झरण गुड़िक उपरे ढालिले तो से सब रक्त होईगला। सेतेबेले मु जलाधिपति दूतों को यह कहिबार शुणिली हे वर्तमान ओ भूत पुणी पवित्र जे तुम्हे न्यायकर्ता बोली एही परि विचार करियछ जेणु से माने साधु मानंकर ओ भाववादी मानंकर रक्तपात करिथिले आउ तुम्हे सेमानंको पान करिबा निमंते रक्त देई अछ से माने सेथिर योग्य। सेतेबेले मु बेदी यह कहिबार शुणिली हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्भर समस्त विचार सत्य और यथार्थ। चतुर्थ दूत आपना पात्र सूर्य उपरे ढालिले तो ताहाकु मनुष्य मानक अग्नि रे दुग्ध करने को शक्ति दिगला। सेतेबेले मनुष्य माने महातापरे दुग्ध हेले आ जो ईश्वरंकर ए समस्त क्लेश उपरे अधिकार अछि ताहांको नामर निंदा कले तांको गौरव देवा निमंते मन परिवर्तन कले नाही। पंचम दूत आपना पात्र से पशुर सिंहासन उपरे ढालिले तहु ताहार राज्य अंधकारमय हला आ लोक माने वेदना हेतु आपना आपना जीभ कामुड़ीबा को लागिले पुणी से माने आपना आपना वेदना और विस्फोटक सकाशे स्वर्गस्थ ईश्वरंकर निंदा कले आउ आपना आपना कर्मरु मन परिवर्तन कले नाही। षष्ठ दूत आपना पात्र फारात महानदी उपरे ढालिले तहु पूर्व दिगरु आगमनकारी राजा मानक निमंते पथ प्रस्तुत हेबा पई ताहार जल शुष्क होईगला। तप्तरे मु देखिली सर्पर मुखरु पशुर मुखरु और भंड भाववादी मुखरु व्यंग परी तीनोटी अपवित्र आत्मा बाहरिले एमाने आश्चर्य कर्मकारी भूतात्मा होई सर्वशक्तिमान ईश्वरंकर महादिनर युद्ध निमंते समस्त जगतर राजा मानंकु एकत्र करिबा पई सेमानंकर निकट को बाहरी जाती। देख आम्भे चोर परी आसुछु जे जाग्रत थाए अपना वस्त्र रक्षा करे से धन्य कारण ताहा कले से उलग्न होई बुलिबो नाही ओ लोके ताहार लज्जा देखिबे नाही। से अपवित्र आत्मा माने राजा मानंकु एव्री भाषा रे हम्र गिधोन नामक स्थान रे एकत्र कले। प्रकाशित वाक्य शेउल पर्व 17 पद ठारू 21 पद पर्यंत। सप्तम दूत आपना पात्र आकाश रे ढालिले तहु मंदिर मध्यरु सिंहासन ठारू एही उच्च स्वर हैला समाप्त हैला।
सेतेबेले विद्युत विभिन्न स्वर और वर्जध्वनि है पुणी महाभूमिकंप है पृथ्वी रे मनुष्य सृष्ट हेबा समय ठारू एही एपरी महाभयंकर भूमिकंप आउ केबे होई नथिला। पृथ्वी रे मनुष्य सृष्ट हेबा समय ठारू एपरी महाभयंकर भूमिकंप आउ केबे होई नथिला। सेतिरे सेही महानगरी 3 भागरे विभक्त हला और बेजाति मानकर नगर समूह भूमिसात हला। आउ महानगरी बाबिल को ईश्वर अपना प्रचंड क्रोध रूप मदिरा पात्ररू पान करवा निमंते स्मरण रे आनिले। पुणी प्रत्येक द्वीप दूरीभूत हला और पर्वत गण आउ देखागले ना। आकाशरू मनुष्य मानक उपरे महाशिलावृष्टि हला। शिलागुड़िक प्राय एक एक महण ओजनर। आउ शिलावृष्टिर क्लेश सकाशु मनुष्य माने ईश्वरंकर निंदा कले, कारण सेही क्लेश अति भयंकर। जहनंक प्रति प्रकाशित वाक्य 17 पर्व 1 पद ठारू 18 पद पर्यंत। महावेश्या एवं पशु, महावेश्या एवं पशु। तप्तरे सप्त प्रातधारी सप्तदूतंक मध्यरु जणे आसी मते कहिले, एठाकु आस, जो महावेश्या बहु जलराशि निकटरे उपविष्ट, जा सहित पृथ्वीर राजा माने बेविचार करियछंती और पृथ्वीर निवासी माने जहार बेविचार रूप मदिरारे मत होइयछंती, ताहार दंड तुमको देखाइबी। सेतिरे से मते आत्मारे प्रांतर मध्यकु घेनी जाते। मु जणे स्त्री लोकंकु गोटे लोहित बन्न पशु उपरे बसिथिबार देखिली। सेही पशुर सर्वांग ईश्वर निंदा सूचक नाम रे परिपूर्ण, आउ ताहार सप्त मस्तक और 10 श्रृंग। स्त्री लोक बाईगणिया और लोहित बन्न वस्त्र परिहिता, पुणी सुवर्ण बहु मूल्यमणि और मुक्तारे भूषिता। ताहार हस्तरे गोटे सुवर्ण पात्र, ताहा घृण्य पदार्थ ओ ताहार बेभिचार रूप अशुचि कर्मरे परिपूर्ण। ताहार कपाଳରେ ଏହି निगूढ़ भावयुक्त नाम लिखित थिला, महानगरी बाबिल, बेश्यामानंकर ओ पृथ्वीर समस्त घृण्य विषयर जननी। मु सेही स्त्री लोकंकु साधु मानंक ओ जीशुंक साक्षी मानंकर रक्तपान रे मत होइथिबार देखिली। ताहाकु देखि मु अत्यंत आश्चर्यान्वित हेली। सेतिरे दूत मते कहले, काहींकि आश्चर्यान्वित हेल? मु तुमको से स्त्री लोकर ओ ताहार बाहन सप्त मस्तक ओ 10 श्रृंग विशिष्ट जो पशु ताहार निगूढ़ तत्व बुझाई देवी। से ही जो पशु को तुमे देखिल ताहा थिला एबे नाही, पुणी ताहा पाताल कुंडर उठी विनाश पाइबो। सेतिरे पृथ्वी निवासी जेते लोकंकर नाम जगतर पतनाविधि जीवन पुस्तक रे लिखित होई नाही, सेमाने जेतेबेले से पशु को देखिबे, जे ताहा थिला एबे नाही ओ परे आसीबो, सेतेबेले सेमाने आश्चर्यान्वित हेबे। एही स्थल रे बुद्धि विशिष्ट मन आवश्यक। से सप्त मस्तक सप्त पर्वत को बुझाए। ए सप्त पर्वत उपरे स्त्री लोक उपविष्ट। से सप्त मस्तक मध्य सप्त राजा को बुझाए। सेमानंक मध्यरु 5 जन पतित होई अछंती। जणे वर्तमान अछि, आउ जणे ए पर्यंत आसी नाही। से आसिले अल्प काल मात्र रहिबो। पुणी जो पशु थिला आउ एबे नाही, से अष्टम। तथापि से सेही सप्त राजांक मध्यरु जणे आउ से विनाश पाइबो। आहुरी जो 10 श्रृंग देखिली, सेही सबु 10 राजांक बुझाए। सेमाने ए पर्यंत राज्य पाई नांती, किंतु पशु सांगरे 1 घंटा पर्यंत राजा मानंक परी क्षमता प्राप्त हेबे। सेमाने एक मना, आउ सेमाने से पशु को आपणा मानंकर शक्ति ओ क्षमता देवे।
ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଆହୁତ, ମନୋନୀତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିବାର ଦେଖିଲ, ସେହି ଜଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ, ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁ 10 ଶୃଙ୍ଗ ଦେଖିଲ, ସେହି ସବୁ ଓ ସେହି ପଶୁ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଉଲଗ୍ନ କରିବେ, ଆଉ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦୁଗ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଓ ଏକମନା ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ସେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ। ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବିଲିର ପତନ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ମହାକ୍ଷମତାପନ୍ନ, ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ମହାଶବ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ ଅଧପତିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ପୁଣି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଜାତିସମୂହ ତାହାଙ୍କର ବେବିଚାର କାମ ରୂପ ମଦିରା ପାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ତାହା ସହିତ ବେବିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀର ବଣିକମାନେ ତାହାର ବିଳାସିତାରେ ଧନୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ ଓ ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। କାରଣ ତାହାର ପାପ ରାଶି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ଅଧର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି କରିଅଛି ସେହିପରି ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ, ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କରିଅଛି, ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ମଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କର। ସେ ଯେତେ ନିଜର ଗୌରବ କରିଅଛି ଓ ବିଳାସତାରେ କାଳ କାଟିଅଛି, ତାହାକୁ ସେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଶୋକ ଦିଅ। କାରଣ ସେ ମନେ ମନେ କହିଅଛି, ମୁଁ ରାଣୀ ହୋଇ ବସିଅଛି, ମୁଁ ବିଧବା ନୁହେଁ, ମୋତେ କଦାପି ଶୋକ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦିନରେ ତା ପ୍ରତି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ, ଶୋକ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିବ, ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଗ୍ନିରେ ଦୁଗ୍ଧ ହେବ, ଯେଣୁ ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିମାନ। ପୃଥିବୀର ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେବିଚାର କରି ବିଳାସିତାରେ କାଳ କାଟିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ଧୂମ ଦେଖି ତାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ ହେତୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ, ହାୟ ହାୟ ମହାନଗରୀ, ପରାକ୍ରମୀ ନଗରୀ ବାବିଲ, ତୁ ଶାନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ, କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଦଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀର ବଣିକମାନେ ତାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଶୋକ କରିବେ, କାରଣ କେହି ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ କ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ, ଯଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ମଣି, ମୁକ୍ତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର, କୁଷ୍ଠଲୋହିତା ବସ୍ତ୍ର, ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର, ସିନ୍ଦୁକ ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ, ହସ୍ତିଦନ୍ତର ସର୍ବପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ, ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ କାଷ୍ଠ
पितल लौह और मर्मर पस्तर निर्मित समस्त प्रकार वस्तु, दारुचिना, सुगंधी द्रव्य, धूप, सुगंधी लौप्य द्रव्य, कुंदुरु, मद्य, तैल, मैदा, गहम, गोरु, मेष, अश्प, रथ, कृतदास और मनुष्य मानकर प्राण। तोहर प्राणर अभिलषित फल सबु तोठारु दूर होइअछि, पुणी समस्त सुस्वादु और मनोहर विषय तोठारु अनंत करा जाई विनष्ट होइअछि। आउ केबे हें ए समस्तर उद्देश्य मिलिब नाही। ए समस्त द्रव्य जो बणिक माने ताहा द्वारा धनी होइथिले, से माने ताहार जंत्रणार भय हेतु दूर ठिया होई क्रंदन और शोक करी कहिबे, हाय हाय महानगरी शांतापर पात्री। ता स्वच्छ वस्त्र कुष्ठलोहित और सिंदूरवर्ण वस्त्र परिहिता थिला, पुणी सुवर्ण मणि और मुक्तारे भूषिता थिला, कारण एक घड़ी मध्यरे से ही महासंपत्ति ध्वंस होईगला। आ प्रत्येक पोताध्यक्ष और जलपथरे गतायतकारी प्रत्येक लोक पुणी नाविक और समुद्र व्यवसायी समस्ते दूर ठिया होई ताहार दाहार धूम देखि चित्कार करी कहिले, एही महानगरी तुल्य आउ केउ नगरी। से माने आपणा आपणा मस्तक रे धूली पकाई क्रंदन और शोक करी चित्कार सह कहिले, हाय हाय महानगरी शांतापर पात्री। ताहार समृद्धि द्वारा समस्त समुद्रगामी जहाजर कर्ता माने धनवान होइथिले, एबे एक घड़ी मध्यरे ताहा ध्वंस होईगला। हे स्वर्ग, हे साधुवृंद, हे प्रेरित वर्ग, हे भाववादी समस्ते, तुमे माने ताहार पतन रे आनंद कर, कारण ईश्वर तुम मानक सकाशे ताठारु प्रतिशोध नहीं अछंती। तप्तरे जड़े बलवान दूत गोटे बृहत चक्की पत्थर परी गोटे पत्थर समुद्र रे निक्षेप करी कहले, एहीपरि महाबल रे महानगरी बाबिल निक्षिप्त हेब, आउ केबे हे ताहार उद्देश्य मिलिब नाही। वीणा बादक, गायक, बंशी बादक और तुरी बादक मानकर शब्द तो मध्यरे आउ केबे हे सुना जीव नाही। कौनसी प्रकार शिल्पकर तो मध्यरे आउ केबे हे देखा जीव नाही। चक्की पत्थर शब्द तो मध्यरे आउ केबे हे सुना जीव नाही। प्रदीपर आलोक तो मध्यरे आउ केबे हे प्रज्वलित हेब नाही। पुणी बरकन्यांक शब्द तो मध्यरे आउ केबे हे सुना जीव नाही, कारण तोहर बणिक माने पृथ्वी रे महान थिले, आउ तोहर मायारे जाति समूह भ्रांत होईगले। पुणी भाववादी मानकर साधु मानकर ओ पृथ्वी रे हत होइथिबा समस्तंकर रक्त ता मध्यरे देखा होइथिला। जहनଙ୍କ प्रति प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 1 पद ठारू 4 पद पर्यंत। स्वर्गरे आनंद, स्वर्गरे आनंद। एवतारे मु स्वर्गरे महाजनतार शब्द परी गोटे महाशब्द यह कहिबार सुनिली, हालेलुया। परित्राण, गौरव ओ पराक्रम आम्भमानଙ୍କର ईश्वरଙ୍କର, कारण ताहांक विचार सत्य और न्याज्ञा। जो महावेश्या अपना बेविचार द्वारा पृथ्वी को भ्रष्ट करिथिला, से ताहाकु दंड दे अपना दास मानकर रक्तपातर प्रतिशोध ताठारु नहीं अछंती। पुणी से माने तृतीय थर कहले हालेलुया। ताहार दाहार धूम जुगे जुगे उठुथिबो, सेतिरे सेई 24 प्राचीन और 4 प्राणी हाबुड़ होई सिंहासन उपविष्ट ईश्वर को प्रणाम करी कहले, आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 5 पद ठारू 10 पद मध्य मेष शावकंक विवाह भोज। मेष शावकंकर विवाह भोज। सेतेबेले सिंहासन ठारू गोटे शब्द निर्गत होई कहला, हे ईश्वरंकर दास समस्ते, हे ताहांकर भयंकारी क्षुद्र
ଓ ମହାନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଘୋର ମେଘ ଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ଼ ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସହ ଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ଭାବବାଣୀର ସାର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବ 11 ପଦ ଠାରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶ୍ବେତ ଅଶ୍ପ ଆରୋହୀ। ତପ୍ତରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ପ। ତାହାର ଆରୋହୀମାନଙ୍କର ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ। ସେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅନେକ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। ସେହି ନାମ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଶ୍ବେତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ପମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଦେଶରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ତପ୍ତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଭୋଜରେ ଏକତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେନାପତି ମାନଙ୍କର, ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର, ଅଶ୍ପ ଓ ଅଶ୍ପରୋହୀମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ପରେ ମୁଁ ପଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କି ସେହି ଅଶ୍ପରୋହୀ ଓ ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ସେ ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ସେହି ଅଶ୍ପରୋହୀଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଜହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସହସ୍ର ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ। ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଓ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲା। ସେ ସେହି ସର୍ପ, ସେ ପୁରାତନ ନାଗ
अर्थात दियाबल और शैतान को धरी 1,000 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइले। पुणी ताहाको पाताल कुंडरे निक्षिप्त करी सेथिरु मुख बंद कले और ताहा उपरे मुद्रांक देले, जेपरी से 1,000 वर्ष शेष न होगा पर्यंत से जाति समूह को आउ भ्रांत करि पारिले नाही। या परे अल्प काल निमंते ताहाको मुक्त हेबाको हेबो। परे मु सिंहासन समूह देखिली, सेही सबु उपरे केतेक व्यक्ति उपवेशन कले। सेमानंकु विचार करिवार क्षमता दियागला। आउ जीशुंको साक्ष्य और ईश्वरंकर वाक्य निमंते जेउ मानंकर मस्तक छेदन होइथिला, पुणी जेउ माने से पशुंकु बा ता द्वारा प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले और ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ ओ हस्तरे धारण करि नथिले, सेमानंकर आत्मा मानंकु देखिले। सेमाने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व कले। अवशिष्ट मृत लोक माने से 1,000 वर्ष शेष न होगा पर्यंत जीवित हेले नाही। यह ही प्रथम पुनरुत्थान। जो माने प्रथम पुनरुत्थानर अंशी हुंती से माने धन्य और पवित्र। सेमानंक उपरे द्वितीय मृत्युर कौनसी अधिकार नहीं, बरंच से माने ईश्वरंकर और ख्रीष्टंकर जाजक होई 1,000 वर्ष पर्यंत ताहांक सहित राजत्व करिवे। प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 7 पद ठारू 10 पद पर्यंत शैतानर अंतिम पराजय। शैतानर अंतिम पराजय। से 1,000 वर्ष शेष होते शैतान कारागार मुक्त हेब। सेतिरे से पृथ्वीर चारि कोणरे थिबा जाति समूह को अर्थात समुद्रर बालुका सदृश्य असंख्य जे गोग ओ मागोग सेमानंकु भ्रांत करी युद्ध निमंते एकत्र करने को बाहरी जीव। सेमाने पृथ्वीर प्रस्थरे विस्तारित होई साधु मानक शिविर ओ प्रियतमा नगरी को बेष्टन कले। सेतेबेले स्वर्गरु अग्नि पड़ी सेमानंकु ग्रास कला। जो दियाबल सेमानंकु भ्रांत करिथिला ताहाको अग्नि ओ गंधकमय हरदरे निक्षेप्त करागला। सेमाने सेई पशु ओ भंड भाववादी मध्य अछंती, पुणी सेमाने दिवारात्र जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिवे। प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 11 पद ठारू 15 पद पर्यंत शेष विचार। शेष विचार तप्तर में गोटे बृहत श्वेतपन्न सिंहासन और तदु पविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली। तांको सम्मुखरु पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला। सेमानंक निमंते आउ स्थान मिलिला नहीं। पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासन सम्मुखरे ठिया होइतबार देखिली। आउ पुस्तक फिटागला। पर जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटागला। से पुस्तक मानंकरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपणा आपणा कर्मानुसारे विचारित हेले। समुद्र आपणार मध्यवर्ती मृत मानंकु समर्पण कला। आ मृत्यु ओ पाताल सेमानंकर मध्यवर्ती मृत मानंकु समर्पण कले। पुणी सेमाने प्रत्येक आपणा आपणा कर्मानुसारे विचारित हेले। तप्तरे मृत्यु ओ पाताल को अग्निमय हृदय पकागला। यही मृत्यु अर्थात अग्निमय हृद द्वितीय मृत्यु। यही मृत्यु अर्थात अग्निमय हृद द्वितीय मृत्यु, जार नाम जीवन पुस्तक रे लेखा होइथिबार देखा न गला, ताको अग्निमय हृदय पकागला। जहनंकर प्रति प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 1 पद ठारू 8 पद पर्यंत नूतन स्वर्ग एवं नूतन पृथ्वी। नूतन स्वर्ग एवं नूतन पृथ्वी परे मु एक नूतन आकाशमंडल और नूतन पृथ्वी देखिली, कारण प्रथम आकाशमंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला, पुणी समुद्र आउ नथिला। पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरुसलेम को
बर निमंते सज्जिता कन्यार सदृश प्रस्तुता होई स्वर्गरु ईश्वरଙ୍କ निकटरू अवतरण करिवार देखिली। आ मु सिंहासन मध्यरु गोटे महाशब्द यह कहिबार सुनिली, देख मनुष्य मानक मध्यरे ईश्वरଙ୍କର बासस्थान अछि। से सेमानଙ୍କ सहित बास करिवे आउ सेमाने ताहांकर लोक हेबे। पुणी ईश्वर स्वयं सेमानଙ୍କ सांगरे रहिबे ओ सेमानଙ୍କର चक्षुरु समस्त अश्रुजल पोछि देबे। मृत्यु आउ घटिब नाही, शोक की क्रंदन की व्यथा आउ हेब नाही, कारण पूर्व विषय सबु लोप पाई अछि। परे सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति कहले, देख आमे समस्त विषय नूतन करिअछु। आउ से कहले, लेख, कारण यही समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य। से मते आहुरी कहले, समाप्त होइअछि। आमे क ओ क्ष आदि ओ अंत जे तुर्सात ताहाको आमे जीवन रूप निर्झररू बिना मूल्य पान करने को देबु। जे जय करे से ए समस्तर अधिकारी हेब, आमे तार ईश्वर हेबु, पुणी से आंबर पुत्र हेब। किंतु जो माने भीरु अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक बेभिचारी मायावी ओ प्रतिमा पूजक से माने ओ समस्त मिथ्यावादी अग्नि ओ गंधक प्रज्वलित ह्रदरे अंश पाइबे। यह ही द्वितीय मृत्यु। प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 9 पद ठारू 27 पद पर्यंत। नूतन जेरुसलाम, नूतन जेरुसलाम। तप्तरे जो सप्तदूत शेष सप्त क्लेशरे परिपूर्ण सप्त पात्र धरिथिले सेमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ जणे आसी मते कहिले, एठाकु आस, मु तुमको सेई कन्या अर्थात मेष शावकंकर भाज्या को देखाइबी। सेथिरे से मते आत्मारे गोटे बृहत और उच्च पर्वत को घेनी जाई पर्वत नगरी जेरुसलाम को देखाइले। ताहा स्वर्गरु ईश्वरଙ୍କ निकटको अवतरण करुथुवा एवं ईश्वरଙ୍କର गौरवविष्ट थिला। ताहार ज्योति अति बहुमूल्य मणि सदृश्य स्वच्छ सूर्यकांत प्रय। ताहार गोटे बृहत और उच्च प्राचीर अछि। सेतिर 12 द्वार, से द्वार रे 12 दूत और द्वार समूह उपरे इस्राएल संतान मानकर 12 वंशर नाम लिखित अछि। पूर्वरे 3 द्वार, उत्तरे 3 द्वार, दक्षिण रे 3 द्वार और पश्चिम रे 3 द्वार। सेही नगरीर प्राचीरर 12 भित्तिमूल, से सबु उपरे मेष शावकंकर 12 प्रेरित मानक 12 नाम लिखित अछि। जे मोहि सहित कथा कहूथिले ताहांक हस्तरे नगरी ताहार द्वार समूह और प्राचीर माप करने निमंते गोटे सुवर्ण परिमापक नल थिला। नगरटी चतुश्रोण, ताहार दैर्घ्य और प्रस्थ समान और सेही नलरे नगरी को मापन्ते 12,000 तीर हैला। सेतिर दैर्घ्य प्रस्थ और उच्चता समान। पर से सेमानंकर प्राचीर मापन्ते ताहा मनुष्यर परिमाण अनुसार 144 हाथ हैला। दूत यही परिमाण अनुसार मापुथिले। सेही प्राचीन सूर्यकांतर मणि निर्मित पुणी नगरटी निर्मल काच परी शुद्ध सुवर्ण निर्मित। नगरीर प्राचीरर भित्तिमूल समस्त प्रकार बहुमूल्य मणिरे भूषित। प्रथम भित्तिमूल हीरकर, द्वितीय नीलकांथ मणिर, तृतीय वैदुज्य मणिर, चतुर्थ मरकत मणिर, पंचम पुलक मणिर, षष्ठ माणिक्य मणिर, सप्तम पुष्पराग मणिर, अष्टम फिरोज मणिर, नवम गोमेदक मणिर, दशम लघुनीय मणिर, एकादश इंद्रनील मणिर और द्वादश सुगंध मणिर। 12 द्वारा 12 मुक्ता, प्रत्येक द्वार गोटे गोटे मुक्तारे निर्मित। आ नगरीर पथ स्वच्छ काच सदृश शुद्ध सुवर्ण निर्मित। मु से नगरी रे कौनसी मंदिर देखिली नहीं, कारण प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर और मेष शावक सेतिर मंदिर स्वरूप अटंती।
आलोक निमंते सही नगरीर सूर्य कि चंद्रर प्रयोजन नहीं, कारण ईश्वरଙ୍କ गौरव ताहांको आलोकित करे और मेष शावक सेथिर प्रदीप स्वरूप। सेथिर आलोकरे जाति समूह गमनागमन करिवे, पुणी पृथ्वीर राजा माने आपणा आपणा ऐश्वर्य ताहा मध्यको आनिबे। सेथिर द्वार समूह दिन बेले कदापि रुद्ध हेब नहीं, कारण से स्थान रे रात्रि हेब नहीं। लोके जाति समूहर ऐश्वर्य और महिमा ताहा मध्यको आनिबे। कौनसी अछुची विषय किए बा घृण्य कर्मकारी बा मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिब नाही। केवल जो मानकर नाम मेष शावकंकर जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे। प्रकाशित वाक्य जहन्नଙ୍କ प्रति प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 1 पद ठारू 5 पद पर्यंत। जीवनदायक जलर नदी, जीवनदायक जलर नदी। पर से मते जीवनदायक जलर गोटे नदी देखाइले, ता स्फटिक सदृश उज्ज्वल, पुणी ईश्वर और मेष शावकंकर सिंहासनरू निगृत होई नगरर पथ मध्य दे प्रभावित होउछि। सेही नदीर उभय पार्श्वरे 12 थर फलदायक जीवन वृक्ष अछि। सेथिरे प्रति मासरे फल फळे, पुणी सेही वृक्षर पत्र जाति समूहर आरोग्य कारक, जाति समूहर आरोग्य कारक। कौनसी अभिशप्त विषय आउ रहिब नहीं। ईश्वर और मेष शावकंकर सिंहासन नगरी मध्य रहिब, आउ ताहार दास माने ताहांकर उपासना करिवे। सेमाने ताहांकर मुख दर्शन करिवे, ताहांको नाम सेमानंक कपाल रे लिखित रहिब। रात्रि आउ हेब नहीं, सेमानंकर प्रदीप कि सूर्यर आलोकर प्रयोजन हेब नहीं, कारण प्रभु ईश्वर सेमानंक उपरे आलोक स्वरूप हेबे, पुणी सेमाने जुगे जुगे राजत्व करिवे। प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 6 पद ठारू 17 पद पर्यंत। जीशुंकर पुनरागमन, जीशुंकर पुनरागमन। पर से मते कहले, ए समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य, जहा जहा शीघ्र घटिब ए सबु आपणा दास माननकु देखाइबा निमंते प्रभु भाववादी मानकर आत्मा समूहर ईश्वर आपणा दूत माननकु प्रेरण करि अछंती। देख आम्भे शीघ्र आसुअछु। ए समस्त पुस्तकर भाववाणी सबु पालन करी से धन्य। मु जहन स्वयं ए समस्त श्रवण और दर्शन कली। श्रवण और दर्शन करिबा परे जो दूत मते ए समस्त दर्शन कराइले, मु ताहांकर पाद तले प्रणाम करिबा निमंते उबुडु हेली। किंतु से मते कहले, सावधान, यह कर नाही, कारण मु तुमर भातृवृंद भाववादी मानकर ओ ए पुस्तकर वाक्य पालनकारी मानकर सहदास ईश्वरन को प्रणाम कर। आ से मते कहले, तुम्बे ए पुस्तकर भाववाणी सबू मुद्रांकित कर नाही, कारण समय सन्निकट। जे अधर्मचारी से आउरी अधर्म करू, जे असुचि से आउरी असुचि करू, पुणी जे धार्मिक से आउरी धार्मिक आचरण करू, जे पवित्र से आउरी पवित्र हो, जे अधर्मचारी से आउरी अधर्म चरण करू, जे असुचि से आउरी असुचि हो, पुणी जे धार्मिक से आउरी धर्मचरण करू, जे पवित्र से आउरी पवित्र हो। देख आम्भे शीघ्र आसुअछु। प्रत्येक लोकरू ताहार कर्मानुसारे फल देबाकू आम्भर पुरस्कार आम्भ सांगरे अछि। आम्भे क ओ क्ष, प्रथम ओ शेष, आदि ओ अंत, जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते ओ द्वार देई नगरी रे प्रवेश करबा निमंते जो माने आपणा आपणा वस्त्र धौत करि अछंती से माने धन्य। जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते ओ द्वार दे नगरी रे प्रवेश करबा निमंते जो माने आपणा आपणा वस्त्र धौत करि अछंती से माने धन्य। कुकुर माने मायावी, बेभिचारी, नरघातक, प्रतिमा पूजक, पुणी मिथ्या प्रिय ओ मिथ्याचारी माने बाहरे रहिबे। आम्भे जीशु मंडली मानक निमंते तुम मानक निकट रे एई समस्त साक्ष्य देबा पई आम्भर दूतंकु प्रेरण करिअछु।
आमे दाऊदंकर मूल ओ वंशज से उज्जवल प्रभाती तारा आत्मा और कन्या कहती आस पुणी जे शुणे से कहू आस जे तृषित जे तृषात से आसू जे इच्छा करे से बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू। प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 18 पद ठारू 21 पद पर्यंत। शेष पद उपसंहार उपसंहार। जो माने ए पुस्तकर भाववाणी सबु श्रवण करती सेमानंकर प्रत्येक जन को साक्ष्य दे कहूअछि केही जदि ए सबु सांगरे किछि जोग करे तेबे ए पुस्तक रे लिखित क्लेश गुड़िक ईश्वर ताहा प्रति घटाइबे। पुणी केही जदि ए भाववाणी पुस्तकर कौनसी वाक्य लोप करे तेबे ईश्वर ए पुस्तक रे लिखित जीवन वृक्ष और पवित्र नगरी रे ताहार अंश लोप करिवे। जे केही ए समस्त विषय साक्ष्य देउअछंती से कहती सत्य आमे शीघ्र आसुअछु। आमेन। हे प्रभु जीशु आसंतु। प्रभु जीशुंक अनुग्रह समस्तंकर सहवर्ती हो। आमेन। जे ए समस्त विषय साक्ष्य देउअछंती से कहती सत्य आमे शीघ्र आसुअछु। आमेन। हे प्रभु जीशु आसंतु। प्रभु जीशुंक अनुग्रह समस्तंकर सहवर्ती हो। आमेन। प्रिय श्रोतागण ख्रीष्टर थिबा एवं बेजातिरे थिबा मोर भाई और भौणी मानंकु मु तिरुपति पात्र जीशु ख्रीष्टंक नाम रे आपण मानंकु समस्तंकु हार्दिक नमस्कार जणाउछि। प्रकाशित वाक्य जीशुंकर शेष पुस्तक ए वाक्य रे समस्त शेष लेखा होइछि। ए वाक्य को जो माने सुनुचंती सेमानंको प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूसरु आशीर्वाद वर्तु। पात्र स्टीवार्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को आशीर्वाद वर्तु। प्रिय रे श्रोतागण ओ मोर हृदयर मोर भाई और भौणी माने पात्र स्टीवार्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को आपण माने आशीर्वाद करंतु एवं प्रार्थना करंतु। आमर टीचिंग मिनिस्ट्री एवं गोस्पेल मिनिस्ट्री को आपणकर प्रार्थना रहू। जो माने ए मिनिस्ट्री को प्रार्थना करुचंती जीशु ख्रीष्टंक ठारू तांको आशीर्वाद वर्तु। हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम मानंकु प्रयोजनीय आहार दियो। आमे माने जेपरि आपणा आपणा अपराधी मानंकु क्षमा करियछु सेहीपरि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा आम मानंकु आण नाही मात्र मंदिर रक्षा कर। जेणु राज्य और पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम भरी हो। आमेन आमेन आमेन। मोर फोन नंबर है 8917212772 9937735900 9439749640। आउरी किछि आपण मानक पई सुंदर सुंदर आमे वाक्य नहीं आसुछु। आपण माने आमर मिनिस्ट्री को प्रार्थना करंतु। आपणको उपरे ईश्वरंकर शांति बर्तु। जिहोवा सालम भाबरे शांति बर्तु। आमेन आमेन आमेन।